So very good morning to all of you. Today the lecture number 5 for the environmental studies, and today we will start our unit number 2. Unit number 2 is nothing but the energy resources, and the total hours for this subject is allotted 10 hours, but maybe for online it will require less of. Okay. So this already discussions we have seen earlier also in lecture number 1, but I will repeat this unit number 2. There are 6 outcomes, and based on this we have topics and subtopics. So in this unit we will see the energy resources, natural resources such as forest, water, energy, land and mineral resources available in our nature in the earth. Similarly, renewable, non-renewable and sacred resources we will study in this unit. Also, we will study causes and effects of depletion of resources. And energy forms, conventional and non-conventional, present global energy use and future demands. Also, we will see the energy conservations and overuse of natural resources and its impact on the environment. So this unit having total marks of 16 and very important for you. So many books are available online, and also many paper solutions are available. You can use from Nirali or Techno Max, etc. So in this syllabus, natural resources are nothing but our forest resource, water resources, energy resources, land resources, and mineral resources we can see. So first of we will start with the natural resources available with us in this uh, earth crust, and that is following are the some of the major resources. Forest resources, from forest we are getting many things for our energy consumption, and mostly we will get wood from the forest. And second major resource is water. So potable water or usable water, and sometime we are calling mineral waters, we are getting from the lake, rivers, sea, and etc. water bodies, wells available nearby us. And you can see the human beings generally they are locating or developing themselves near the water bodies, because water is the basic need of human being, है ना. तो यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट रिसोर्स जहाँ से हमको लकड़ी
मिलती है, फूड मिलता है, और फॉरेस्ट की वजह से हमको जो इकोलॉजिकल साइकिल है वो मेंटेन होता है। वाटर, वाटर, रेन होती है, रेन से हमको वाटर मिलता है। इसी तरह सेकंड मेजर जो सोर्स है वो है वाटर है। वाटर हमको मालूम है कि दुनिया का 1/3 हिस्सा सिर्फ ज़मीन है, बाकी सब वाटर है। और वाटर में भी इस्तेमाल के पानी जो है वो कम है, बाकी सब सी वाटर जो है they are more than 90% and they are not potable as usual. They contain many harmful salts, we cannot consume that, or human being body will not accept that water. Then there are mineral resources, जैसे कि हम कोयला, कोल है, पेट्रोलियम है, और गोल्ड है, दूसरे माइंस है, आयरन ओर है, और ऐसे बहुत से मिनरल हमको ज़मीन में, मादनियात हम जिसको बोलते हैं, ज़मीन से हमको मिलती है, और वो हम हमारे डे टू डे लाइफ में इंसान अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फूड रिसोर्सेज, खाने के जो फ्रूट्स हैं, फल्स हैं, सब्जियां हैं, एनिमल्स के लिए ग्रास है, और फिर इसमें भी बहुत सारी रिसोर्सेज, हम खुद खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एंड वी आर डेवलपिंग द रिसोर्सेज। इसी तरह एनर्जी रिसोर्सेज हम जैसे डीजल है, पेट्रोल है, सनलाइट है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज एनर्जी रिसोर्सेज। Similarly, land is also the resource, and we are using land, we are building our houses, and many industries and other things. We are farming also, we have forest also, we have land area for our development. So they are land resources. तो इन नेचुरल रिसोर्सेज जो कुछ और हमको रिसोर्सेज मिले हैं, ये 6 टाइप के रिसोर्सेज हैं, और इनमें से हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हैं, फॉरेस्ट आर नॉट वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्स ऑन दिस अर्थ। इट इज़ अ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज टुगेदर विद अदर प्लांट्स कवरिंग अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। तो जंगलात वहाँ पर डेंसली ग्रोथ ऑफ ट्रीज है, और दे आर गिविंग अस द वुड, and wood is also one source of energy. We are burning and we are cooking and using for our cooking. We are using wood for our building purpose also. We are using wood for making our sailing boats, etc. And many such useful things we can get from the forest, जैसे कि रबर है, और दूसरे अनदर एटम्स, रोप मेकिंग के लिए वी आर यूजिंग सम वुड्स, क्लाइंबर्स। लाइकवाइज ये फॉरेस्ट के रिसोर्स, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फिर वाटर रिसोर्सेज हम देखेंगे। वाटर इज इंडिस्पेंसेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑन दिस अर्थ ऑन विच ऑल लाइफ डिपेंड, है ना। तो पानी पर ही हमारी ज़िंदगी मुनहसर है, और अबंडेंटली वाटर अवेलेबल है, लेकिन उसमें से बहुत कम ही है जो हम इस्तेमाल कर पाते हैं। About 97% of Earth's surface is covered by water, and most of animals, plants have
60 to 65% water in their body. तो पानी की मिकदार हमारे बॉडी में अराउंड 60 to 65% होती है, या प्लांट्स में आप बोलेंगे तो it is very important for the living being and living things. Water is characterized by certain unique features which make it a marvelous resources, but it should be usable. It should not be contaminated, it should not be harmful. Then only we can use that. अगर वो contaminated water है तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हार्मफुल है प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी। इसी तरह हमारे अतराफ में जो जंगलात हैं उससे हम लोग को मिनरल्स मिलते हैं, और जो हमारे अतराफ में खदानें हैं उनसे हमको बहुत सी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स वी आर गेटिंग। तो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग inorganic crystalline solids having definite chemical composition and characteristic physical properties, है ना, जैसे कि फेल्डस्पार है, कॉर्ड्स है, और दूसरे रॉक्स मिनरल्स जो हैं वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। कोल है, तो these are the mineral sources, these are the mineral sources. Then food resources, there are thousands of edible plants and animals over the world, out of which only about 3 dozen types constitute major food humans. तो बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं जिनके फ्रूट्स हैं वी आर यूजिंग फॉर आवर फूड, बहुत से एनिमल्स हैं वी आर यूजिंग फॉर आवर फूड फॉर द ह्यूमंस। The main food resources include wheat, rice, maize, potato, barley, oats, etc. And about 20 or so common fruits and vegetables available, and milk, feed, fish, seafoods also we are using for our food resources. So we can say that sea is also source of our food resources, water is also, as well as lands we are uh, farming for our food items, जिसमें से कॉमनली गेहूँ है, चावल है, मक्का है, पोटैटो है, बार्ली, शहीर है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हमारे इस्तेमाल करते हैं। जो फूड आइटम हमको ज़मीन से, पानी से और फॉरेस्ट से या फार्मिंग से हमको हासिल होती है। इसी तरह एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी जो हमको मिलती है तो उसमें हम सोलार एनर्जी है, एयर से हम लोग एनर्जी बनाते हैं, विंड एनर्जी हम जिसको बोलते हैं। इसी तरह पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर। इसी तरह हम लोग कोल बर्निंग से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर। इसी तरह पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है जो हम लोग कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड न्यूक्लियर एनर्जी जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से हमको पैदा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी इज़ चीप एंड very large quantity will get
but their side effects are very large. और नेचुरल रिसोर्सेज से भी हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं वुड बर्निंग से, लेकिन अगर हम नेचुरल रिसोर्स से अवॉइड करें तो डेट विल बी गुड फॉर आवर प्लानट। इसी तरह अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, अल्टर हाइड्रो पावर एंड नॉन रिन्यूएबल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, दैट इज कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर गैस है, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एंड conventional energy sources. And non-conventional, they are solar, wind energy and hydro power. इसी तरह सॉइल, मिट्टी जिससे हम डिफरेंट बर्तन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए या कोई ऐसे मटेरियल बनाने के लिए जो हमारे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, तो दे आर कॉल्ड एज सॉइल और लैंड रिसोर्सेस। तो लैंड इज अ फाइनाइट एंड वैल्यूएबल रिसोर्स अपॉन विच वी डिपेंड फॉर आवर फूड, फाइबर, fuel, wood, the basic amenities of life. Soil is also valuable resource. तो हम देखेंगे कि जो सॉइल है यानी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं लैंड रिसोर्सेज है, उससे हम लोग हमारे बहुत से प्लांट ग्रो होते हैं, उससे हमको फाइबर मिलता है, वुड ट्रीज से हमको लकड़ियाँ मिलती हैं, वी आर यूजिंग इट इज़ आल्सो फॉर एनर्जी सोर्स। I request all students please join on time. Daily I am saying, but still many people they are joining late. From next lecture onward, I will not accept them. Now we will see the depletion of the resources. Depletion यानी हमारे डे टू डे यूज से जो कमी आ रही है एनर्जी रिसोर्सेस में या रिसोर्सेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन, कमी होना। तो डिप्लेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेस, जनरली कोई भी चीज़ जो हमारे इस्तेमाल की होती है तो इंसान क्या करता है, जल्दी जल्दी वो निकाल लो और हम इस्तेमाल कर लें, और उसी की तरफ वो भागने लगते हैं, और इसकी वजह से हमको उसकी कमी महसूस होती है। जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए रेत बहुत ज़रूरी है, नेचुरल सैंड। उससे जो काम हमारा होता है वो नेचुरल सैंड से और दूसरे सैंड से नहीं होता है। तो ये रिसोर्स में कमी क्यों हो रही है, क्योंकि हम उसका ओवर यूज़ करते हैं। That's why depletions are occurring. The depletion of soil resource is one of the big problem in human civilization facing in almost all the continent. 7 continents हैं, हर जगह ये प्रॉब्लम है। Soil is the basic stuff required to start food chain as plants are growing there and first producer which grow in soil. तो फूड चेन का पहला हमारा सबसे बेसिक जो है वो क्या है, सॉइल है। और सॉइल रिसोर्स अगर हम लोग को कम होगा तो हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी पर हमारे प्लांट ग्रो होते हैं और हम उसको फूड मिलता है नेचुरल रिसोर्स से। इसी तरह सॉइल इरोजन जो है, सॉइल कॉम्पैक्शन, सॉइल इरोजन यानी हवा से, पानी से जो सॉइल इरोड होती है, बह जाती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल इरोजन। सॉइल कॉम्पैक्शन, हम हमारे बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हम कॉम्पैक्ट करते हैं सॉइल को। लो ऑर्गेनिक मैटर्स, लॉस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर,
ओवर इंटरनल ड्रेनेज, सैलिनेशन बोले तो इफ़ द सॉल्ट कंटेंट और नमक जिसको हम बोलते हैं अगर पानी के अंदर या सॉइल के अंदर ज़्यादा है हम उसको क्या बोलते हैं, सैलिनेशन बोलते हैं। सॉइल एसिडिटी, इफ एसिड और हार्मफुल acids are available in the soil are called termed as soil acidity, are various forms of soil degradation. Among these, soil erosion is a major one. Soil erosion means the upper layer of soil we are using for different purpose, for backfilling, for farming, and for other purpose we are removing and they are harmful for us. Soil erosion is naturally occurring process on land. The agent of soil erosion are water, जैसे कि मैंने बोला कि रेन वाटर अपने साथ सॉइल लेकर इरोड करता है, ले जाता है एक जगह से दूसरी तरफ। और उसी तरह विंड है, विंड से भी हवा से भी हमारे जो सॉइल इरोड होता है। They both contributing significant amount of fertile soil loss each year. यानी जो वैल्यूएबल फर्टाइल लैंड है जिससे हम फार्मिंग में इस्तेमाल करते हैं वो इरोजन में लॉस हो जाती है। तो दैट इज द लॉस फॉर अस बिकॉज टॉप सॉइल लॉस इज वेरी सीरियस। इसी तरह द लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम फार्म लैंड में बी रिफ्लेक्टेड इन रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन। तो अगर सॉइल लॉस हुआ तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, reduced crop production potential, lower surface water, and quality and damage of drainage networks. So these are the loss from the erosion of your soil. तो causes of soil depletion हम देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन एट ह्यूज लेवल, आपकी जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, उसके जो जड़ें हैं वो होल्ड करके रखती हैं सॉइल को, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से dense vegetation cover prevents loss of topsoil from rain and wind. Overgrazing causes loss of topsoil. Settlement of environmental pollutants. Similarly, overuse of irrigation and chemicals in agriculture has deteriorated the quality of soil. आप सुने होंगे कि कुछ सदियां पहले आंध्रा में बहुत से किसानों ने खुदकुशी की और बहुत से किसान खुदकुशी करते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ह्यूमन बीइंग का है। ह्यूमन बीइंग कम से कम इफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहता है। तो किसान भी कीड़े मार दवा, जिसको हम पेस्टिसाइड भी बोलते हैं या इंसेक्टिसाइड आप बोलेंगे, तो ये दवाएं इस्तेमाल करते थे और वो इस्तेमाल करने की वजह से जो उनकी वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड है, जो सॉइल है, वो एग्रीकल्चर के लिए कुछ दिनों बाद फिट नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से लिए हमारी सॉइल जो है, सॉइल पोल्यूट हो गई, ख़राब हो गई। और फिर उनको जिस तरह प्रोडक्शन मिलना चाहिए था, जो खर्चा करते थे उतना प्रोडक्शन नहीं मिलता था और इसमें वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे और वो खुदकुशी कर लेते थे। तो ये हमारा ही प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग का ही, कि कोई चीज़ हासिल करने के लिए आगे के ताल्लुक से हम नहीं सोचते हैं और हमारे वैल्यूएबल नेचर रिसोर्सेज को हम अपने हाथों से खुद बर्बाद कर सकते हैं। अब इसकी कॉजेज़ तो हमने पढ़ लिए कि डिफॉरेस्टेशन
यानी ट्रीज़ जो हम लोग हमारे मकसद के लिए काटते हैं, ट्रीज़ जनरली जहाँ पर भी होते हैं हम देखेंगे कि वहाँ इकोलॉजिकल साइकिल मेंटेन होती है, क्योंकि ट्रीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए वो इनहेल करती है और ऑक्सीजन देती है ह्यूमन बीइंग के लिए डे लाइट में, और उससे फोटोसिंथेसिस होता है और वो बढ़ते भी हैं और यूज़फुल ऑक्सीजन हमको देते हैं। और इससे ट्रीज होने की वजह से प्रिसिपिटेशन यानी रेन, या फिर आप बोलते हैं बारिश जो होती है, वो बराबर रेगुलर टाइम में अपने मौसम के हिसाब से होती है। लेकिन डीफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम लोग को वुड का रिक्वायर बर्निंग के लिए या कोई और पर्पज़ के लिए, बिल्डिंग पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे सॉइल, जैसे कि मैंने बोला कि वेजिटेशन कवर की वजह से सॉइल इरोड नहीं होती, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक तो साइकिल मेंटेन नहीं होती है इकोलॉजिकल, और दूसरा ये हमारा इरोजन की वजह से वैल्यूएबल सॉइल ये यूज़फुल ये कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह इफेक्ट ऑफ सॉइल डिप्लेशन अगर हम देखेंगे तो लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम फार्मलैंड, रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे प्लांट को ग्रोथ के लिए हमको सॉइल चाहिए, और सॉइल अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। या फिर यूज ऑफ या कॉन्टामिनेट अगर आप करते हो आपकी सॉइल को, तो हार्मफुल केमिकल दे विल अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ योर क्रॉप्स। फिर लोअर सरफेस वाटर क्वालिटी, यानी जो हमारा ज़मीन के अंदर पानी है उसकी क्वालिटी भी इससे हार्मफुल होती है, और that will not give such nutrients that required for the plant to grow. Damaged drainage network, हम देखते हैं कि हमारा डे टू डे यूज़ में हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी हम ड्रेनेज के ज़रिए कहीं पर तो हम उसको ट्रीट करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं। अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो उसमें हार्मफुल केमिकल्स अगर हैं तो वो हमारे वैल्यूएबल लैंड को इफ़ेक्ट करेगी, और सॉइल डिप्लेशन का एक सोर्स ये भी है। सोल्यूशन क्या है, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? पहले तो गुड वेजिटेशन कवर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज़ और प्लांट उगाएं ताकि हमारा सॉइल जो है इरोजन से बच जाए। Almost one third of area must be covered by vegetation so that the effect of rain, showers, high speed winds on surface soil can be minimized. यानी अगर आपकी लैंड है तो कम से कम वन थर्ड एरिया उसका आपका वेजिटेशन, गुड वेजिटेशन कवर होना चाहिए। फिर यूज़ ऑफ न्यू इरिगेशन पार्टिकल्स प्रैक्टिसेस लाइक ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन सेव सरफेस सॉइल। तो पहले हम लोग रन ऑफ वाटर से हम पानी डालते थे और वो पानी अपने साथ कुछ सॉइल लेकर बह जाता था। तो अगर इरिगेशन के लिए हम ड्रिप इरिगेशन आप देखेंगे कि पानी जो है जितना क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही हम सप्लाई करते हैं, तो वो ड्रिप के फॉर्म में आपके रूट को जहाँ पर पानी का रिक्वायर्ड है वहाँ पर सप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे शॉर्ट वीडियो अपन रन करते हैं, so you can see the how the drip irrigation is done.
तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये ड्रिप से पानी छोड़ा जा रहा है रूट पर, जहाँ पर हमको ज़रूरत है ना। यू कैन सी दैट। देखिए, ये ड्रिप बाय ड्रिप वाटर पानी के अंदर जा रहा है। इससे आपका इवापोरेशन लॉस भी कम होता है, और जहाँ पर पानी की ज़रूरत है वहीं, इससे कोई इरोजन सॉइल का नहीं होगा, क्योंकि ड्रिप बाय ड्रिप पानी सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, और इससे सॉइल वेट होती है, और यही हमको रूट को चाहिए। देखिए आप, ये फिल्टर लगा हुआ है, उसके बाद प्रेशर रेगुलेटर है कि कितना प्रेशर से आपको पानी, कितना पानी छोड़ना है, और कब तक पानी छोड़ना है, उसके लिए टाइमर भी लगा हुआ है। और ये आपका ड्रिपर है। ये देखिए how the drip irrigation system is working. Similarly, you can search for the sprinkler system. So these are the different systems we can use for the irrigation to avoid the water losses. ये देखिए, इस तरह भी हम ड्रिल होल्स करके यू कैन यूज वेयर वी नीड द वाटर फॉर आवर गार्डनिंग पर्पस. Also, you can see the sprinkler system. These are the sprinkler system of the water your soil. और इसकी वजह से you can uh, reduce the erosion of your soil. These are different sprinkler system you can see. You can see
all such details are available, and you can go for that. So that use of drip irrigation and spray system also use of sustainable agriculture technique like use of biofertilizers, biopesticide. Pesticides is harmful for your land. The biopesticides they are degradable, prevent the soil from overdose of chemicals and their side effects. इसी तरह एजुकेटिंग द फार्मर्स को नॉलेज देना कि किस तरह आपको फार्मिंग करना चाहिए तो आपकी जो वैल्यूएबल लैंड है या सॉइल है वो इरोड ना हो. So this is about the soil and soil erosion, and uh, tomorrow inshallah we will see about the depletion of water resources and their causes and other things related to the water resources. Thank you joining today, and tomorrow inshallah we will continue